So in the last lecture, we have learned about dependency injection, mm, how injection is handled by Angular, what is the role of dependency injector in Angular, okay, and how do we achieve this using services, okay. So that part we have learned in the last lecture, okay. So we have created a service, we have created a simple class, and then we have added an @injectable decorator, and in that we have provided in root, so that your service will be available globally on root level. That means a single instance will be available for all the components directives wherever you use this service, okay. And to inject this service, we inject it using constructor, okay. In the constructor we specify the service name, the service variable basically, and the service will be injected through your constructor by dependency injector, okay. So we can also do component level injection. So in the component, we can provide the service as a provider's array. So it will only be available for that component and its child component. That means the instance of that service will be same for that component and its child components. For another component or for different component, it will be the instance will be differently used. Okay. Same is with your module as well. So module also, in the module also you can provide service using providers array. So you have to have multiple modules. Then the instance of that service for that module will be single, and for another module, for a different module, it will be a different instance will be used. Okay. So that's how your services are, and that's how the dependency injection works. Okay. That's a design pattern. Okay. Now, we yesterday we have implemented this stuff, and we have also seen the how we can update this counter. Okay, so when I update this, click on this, and the counter here is not updating in a real time. I have to go here and click on this, and then I am able to get the count. Okay, so if I want to get it real time, okay, I need to do it in like there is one way you can do it by using set interval, and in set interval you can get the value, okay, and you can update the value, okay, cart value. That's simple, okay, that's not a hardcore thing. You don't even need to call get count for that purpose. You can directly use set interval here, and set interval, you can update and get the count, and you can update it. You can just put a 1,001 second delay. Okay. After 1 second delay, it will be displayed. You can see. Click on it. After 1 second, you will see the value here. Okay. Again, same. Okay. So whatever the value I update, after 1 second, I will get it. Okay. So it is not like just in real time. If I want to do it, I can do it like 0 milliseconds as well. Okay, but 0 milliseconds will be like it will be a burden. Okay, because when you run a time interval or timer, okay, it basically every time it requests the data, okay, and if you are calling an api in that, then the api will be called every time. Okay, we don't want to call it every time. Okay, so now we want to do it real time. Okay, for that purpose we need to understand one topic, which is RxJS. Okay, now what is RxJS? RxJS is totally a new topic for you. Okay, you can search for RxJS. You get a first link for RxJS.dev. Okay, you have a learn RxJS.introduction website. Okay, there is also reactivex.io website. Okay, so actually, RxJS is nothing but a reactive extension for JavaScript. Okay, and it is a part of reactivex library. reactivex is an API for asynchronous programming with observable streams. So this reactivex actually uses one of the design pattern, that is nothing but observable pattern. Okay, observer subscriber pattern. Okay, what is observer subscriber pattern? Okay, I can give you one simple example. You can relate to that using for this observable pattern. Um, so in a building or wherever you go, you basically see CCTV camera, right? The CCTV camera is nothing but a, you can say,
a real life example of your observable pattern. Okay, house. So when I say CCTV camera, okay, so it basically when I say a CCTV camera, it basically captures whatever is there in front of that camera. Okay, but that captured value is basically not received to you unless and until you connect that CCTV camera stream to any of your device. Okay, so if you connect that stream to your mobile, or if you connect that stream to your uh, laptop, or if you connect to that stream to your TV, then only you will be able to receive its data, or whatever that camera is capturing. Okay, that is nothing but observable pattern itself. So observable and subscriber. So when a CCTV camera is nothing but observer, okay, it is observing these things. Okay, whatever is happening in front of that camera. And when you subscribe, or when you basically connect or to that stream of the data which is flowing from your CCTV camera, when you connect to that, that is nothing but a subscription. So you subscribe to that camera and you get the value. Okay, you can obviously do some filtering, and you can apply some like image manipulation, video manipulation things, like you are receiving color full image video, and you can convert it to a black and white video. You can convert it to some sepia type of video. Okay, so you can basically do some operations on it as well. Okay, so this is nothing but operators. So we can basically perform some operations on that stream, the data which is coming from the CCTV camera. Okay, this is the best example for understanding the observable pattern. Okay, so there is a observable which is observing some data, and it is observing and capturing that data. Okay, but you will not get that data unless and until you subscribe to that observable. Okay, that means unless and until you connect to that CCTV camera stream, till you will not get any value, you will not see any data. Okay, so from this you can understand that observables are basically lazy. They will not give you the value immediately. Okay, they will only give you value whenever you subscribe to them. Okay, so that's observable pattern. Okay, observable is nothing but you are observing, and from one end you are observing, on another end you are subscribing. Now before subscribing it, you can obviously do some operations. You can convert that video to some high resolution, low resolution. Okay, you can perform some operations. You can convert that video's color quality from colorful to black and white, or some sepia color. So you can perform some operations. So observable pattern also has some operators, that basically operators perform operations on this data. Okay, so this is as ReactiveX says, that it is an API for asynchronous programming with observable streams. So that means this is used for asynchronous programming. Okay, but for asynchronous programming, we already have some stuff like we have promises. Okay, promises can also be used with asynchronous programming. But why then? Then why we need a ReactiveX library? Okay, so here Rx, yes. सर थोड़ा स्लो. अच्छा, तो see, asynchronous programming के लिए we have a promise library, right? So promise, what it does is it basically uh, gives it calls the function, and after some time the what you can say, the logic will be executed and you will get the output. You can get the output after some time. That is nothing but your asynchronous programming, or you can say parallel programming, where you are performing multiple tasks, and once the task is completed, you will get the response. Okay, that's nothing but your asynchronous programming. Okay, so for this kind of stuff, we already have promises. So promises can handle asynchronous programming. Then why do we need this ReactiveX library? Okay, why do we need this ReactiveX library? So RxJS, if you see its documentation, okay, they have, I guess, explained it wonderfully. There is a table here. You can see that there are like two types of mechanism. One is pull and another is push. Now, in pull mechanism, we basically
pull the data, or we get the data by calling it. Okay, by calling it, we get the data. Okay, and in push, basically we just subscribe to it, and the data will come to that stream. Okay, it's like you have a socket. Okay, and on that side of socket you connect a connector, and when you connect a connector, and if you switch on the button, then whatever the electricity is flowing, that basically you will get it through, or basically whenever the electricity is pushed from that socket, you will get it through connector. Okay, if you close that button, then you will not receive the electricity. Okay, so whenever the electricity is pushed, then only it is you are getting that electricity through that connector. Okay, so that is nothing but push mechanism. Okay, so pull can be handled like pull and push. These two technologies, okay, two mechanisms can basically be used for single response or can be used for multiple responses. Okay, now to get a single response, we have a function. We can call a function, and in a return statement, you can get a return value. Okay, that's a single. You're calling a means you are calling a function. That means you are pulling a data from a function by calling that function, and the data is returned. Okay. In case of multiple, it's like a iterator. Iterator, we basically iterate through a particular array or a list, and then we get the value. Okay, so that is iterator. So in iterator, we are calling that iterator, and then we are receiving the response. That is also, in this case, we are receiving multiple responses. Okay, so for pull technology, we have this single and multiple, but for push, we only have a single value. Okay, so if you call a promise, you can receive only one response. Okay, either it can be successful or it can be failure. Okay, so if it is successful, then you will do whatever you want. If it is failure, then yeah, you can display the error. Okay, that's the push technology, push mechanism. We are basically calling the API, and once you the response is returned, that is pushed to you. Okay, whenever it is returned, we are waiting for it, and once the response is returned, it is basically pushed to you by calling a function, and then you receive a response. Okay, that's a single value push mechanism. But for multiple values, we don't have anything in JavaScript yet. Okay, for that purpose, we need observables. So observables are nothing but same thing. So when I uh, call a particular thing, and whenever the data is received from that particular stream, you basically receive it. So it is basically pushed to that stream, and then you receive it. Okay, so that's your push mechanism. So there here the observable are basically useful. Okay, and here basically comes your reactivex library. Okay, RxJS reactivex is a general concept. It is not only meant for JavaScript, it is general. You can say see that in reactivex.io, we can observe like there are RxJava, RxJS, RX.NET, RX Scala. So there are like a lot of languages support this reactivex library. Okay, and yeah, so this is what reactivex is. Okay, so it's an API for asynchronous programming with observable streams. So there will be multiple data coming through that stream, and you are subscribing to that data, and you are receiving. Okay, so that is your reactivex library. Okay, understood till this? Till this point, any questions? नहीं समझा नहीं समझा? नहीं सब बाउंसर गया बाउंसर गया, ठीक है। अम, ठीक है, कैसे समझाए? ठीक है, चलो हम लोग जब बेसिकली एक फंक्शन कॉल करते हैं, राइट? तो जब फंक्शन कॉल करते हैं तो हम लोग को डेटा इमीडिएटली मिल जाता है, राइट? यू रिसीव दैट डेटा इमीडिएटली। ओके, बट हम लोग जब उस टाइम पे हम लोग एक ही रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं। ओके, पहले तो हम लोग को RxJS का जरूरत क्यों लगा और reactivex लाइब्रेरी का जरूरत क्यों लगा, ये हम लोग अंडरस्टैंड करते थे। सो we have for single value, okay, we can call a function, and that function can return a value, and you will receive the response. Okay, that's synchronous.
Okay, right? Yes. When you want to receive multiple values, okay, you have a array, you have list, okay, then you can loop through that array, and for every element of that array, you can receive the value. Okay, that's also a synchronous, correct? Mm. You can basically you can Yes. basically pulling the data with multiple values, Yes. right? Now for asynchronous thing, okay, we have a promise. So we call a function, and whenever the function is basically taking some time, so till that we can do some other stuff. Now once the response is ready, the response is basically pushed to you, okay, by calling a function, by calling a success function or failure function. Mm. That response is pushed to you, okay, and you will receive the response. But this is only a single response. You cannot receive multiple responses, right? So for this we have a promise. So promise can do this. मल्टीपल रिस्पॉन्सेस मतलब क्या? मल्टीपल रिस्पॉन्सेस मतलब कि अगर सपोज मुझे मेरा एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, आप ये देखो कि आपका स्टॉक एक्सचेंज का जो वेबसाइट अगर आपने कभी देखा होगा, उसका ग्राफ जो रहता है, ओके, वो कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहता है, करेक्ट? सो वहां पे आपका क्या है कि कनेक्शन सर्वर के साथ एक बार कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, ओके, एंड देन यू आर रिसीविंग दैट रिस्पॉन्स every time, right? That's a multiple response you are receiving. Okay, understood? मतलब आप बार बार एपीआई कॉल नहीं करते. आप अगर अगर आपको चीज कंटिन्यूअसली चाहिए, करेक्ट? अगर आपको एक चीज कंटिन्यूअसली चाहिए, मतलब मल्टीपल रिस्पॉन्सेस चाहिए, तो आप बार बार उसको कॉल नहीं करोगे, करेक्ट? सो अगर सपोज चलो उसका एग्जांपल छोड़ो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपको अगर सपोज जब आप ओला या उबर का ये देखते हो, कि या फिर गूगल मैप्स में आपने अगर लोकेशन डायरेक्शन चालू कर दिया, आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना है, करेक्ट? तो वो लोकेशन पे जाने के लिए आप जब आप देखते हो कि आपका लोकेशन का जो मैप पे जो लोकेशन रहता है, आपका मूव होता रहता है, जैसे जैसे आप चलते हो, गाड़ी चलाते हो, वो मूव होता रहता है, करेक्ट? राइट. अभी उसके लिए मैं कंटिन्यूअसली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पुल नहीं कर सकता, ओके, करेक्ट? समझा. मतलब वो बेसिकली हम लोग बार बार उसको हिट करेंगे तो बैकएंड के सर्वर पे प्रेशर जाएगा. प्रेशर भी आएगा और आपका बैटरी भी ड्रेन होगा, क्योंकि आप बार बार कॉल कर रहे हो, हाँ. करेक्ट? सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रीम, मैंने सर्वर को डायरेक्टली एक कनेक्शन क्रिएट किया, एक पाइप क्रिएट किया, पाइपलाइन. अभी वो पाइपलाइन कनेक्ट होने के बाद मैं सर्वर से डेटा पुश करते जा रहा हूँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पुश करते जा रहा हूँ, और वो मुझे रिसीव होते जा रहा है. ओके, मतलब सर्वर भेजते ही रहेगा कंटिन्यूस. सर्वर भेजते रहेगा, फिर क्लाइंट का ऐसा जरूरी नहीं कि उसको बार बार कॉल करना है. अच्छा, मतलब उसको हिट करना जरूरी नहीं है, हाँ, वो भेजते ही रहेंगे. ओके. हाँ, सर्वर मतलब भेजता रहेगा. रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बार बार लाइक हाँ, भेजेगा, राइट? हाँ, रिक्वेस्ट आप सिंगल एक ही बार रिक्वेस्ट मल्टीपल करेक्ट, रिस्पॉन्सेस. multiple ओके. responses you can say. Single request, multiple responses. That means you are only connecting once and you are receiving multiple responses in that connection. Okay. ओके. ओके. बट उससे सर ले सिर्फ 50% ट्रैफिक लोड ही कम होगा, राइट? अगर लाइक टेक्निकली देखा जाए तो, बस इवेंचुअली रिस्पॉन्स तो उतने ही जा रहे हैं जितने अगर रिक्वेस्ट होते हैं. सी रिस्पॉन्स उतने जाएंगे, बट आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है ना, वो बेसिकली कम हो रहा है ना. आपको बार बार कॉल नहीं करना पड़ रहा है, ट्रैफिक तो आपका 50% कम हो गया ना. तो राइट. ऑब्वियस है. और आपको जब भी आप एपीआई कॉल करते हो, आपको हेडर्स भेजने पड़ते हैं, डेटा भेजना पड़ता है, कि आपको टोकन भेजना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन करने के लिए. तो ये सब डेटा भी तो बार बार भेजना पड़ेगा, जो ओवरलोड है. राइट. आपने एक ही बार भेज दिया, एक बार ऑथेंटिकेट हो गया, बार बार अभी ऑथेंटिकेट करने की भी जरूरत नहीं है, करेक्ट वो सर. लोड भी कम होगा. सो दैट इज अचीव थ्रू सॉकेट्स. तो वो सेपरेट पार्ट है, वो सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए. बट इन फ्रंट एंड अगर हम लोग को एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, असिंक्रोनस एपीआई है और एसिंक्रोनस फंक्शन है, जो कंटिन्यूअसली आपको डेटा भेज रहा है और उससे आपको रिसीव करना है, ओके, सो उसके लिए आप कैसे करोगे? ओके, सो जैसे कि लेट्स कंसीडर आपका इवेंट है, ओके, आप माउस जब ड्रैग कर रहे हैं, तो माउस जब ड्रैग करते हैं तो आपका कंटिन्यूअसली माउस मूव का इवेंट चालू रहता है,
अब वो इवेंट पे आपको सब्सक्राइब करना था, आपको जब सब्सक्राइब करोगे तो आपको कंटिन्यूअसली उसके जहां जहां पे माउस मूव होगा उसका लोकेशन मिलता जाएगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि जहाँ पे आप एक ही बार कनेक्ट कर रहे हो इवेंट को, ओके, माउस के इवेंट को, एंड आपको वो जब भी वो माउस मूव हो रहा है आपको रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल. So that's where we need ReactiveX library. So till in JavaScript, till now there is nothing called as single request and multiple, you can receive multiple responses. Okay, so for this purpose, RxJS is there, right? ReactiveX library is there. Okay, maybe browser in future browser may implement observable pattern. Okay, so in that case we may have some alternative for this, but till then we have ReactiveX library and it is very popular. Okay, and it is somewhat hard to learn, but once you get a concept, understand the concept, and you will find it like fun to learn it. Okay, RxJS. सर So तो इवेंट बबलिंग कैप्चरिंग एंड डेलीगेशन क्या होता है, वो भी तो इवेंट यही कर। बबलिंग मतलब क्या होता है कि अगर आपने सपोज आपका ये देखो ये बटन है और ये बाहर हाँ का एक कार्ड है, राइट? सो हाँ। अगर मैं क्या बोलते हैं, मैंने अगर ये कार्ड पे इवेंट लगाया है, हम्म ओके, एंड जब मैं ये बटन पे क्लिक करूँ, कार्ड के अंदर मेरा बटन है, हम्म ओके, और मैंने लेट्स से कि इवेंट लगाया है कार्ड पे, ओके, तो कार्ड पे अगर क्लिक करूंगा तो कुछ हो जाएगा, करेक्ट? बट अगर मैंने हम्म बटन पे क्लिक नहीं लगाया, बट बटन ये कार्ड के अंदर होने की वजह से मैंने अगर इधर भी क्लिक किया तो भी मेरा इवेंट ऑकर होगा। हम्म। ओके, दैट मीन्स योर आपका जो इवेंट है वो एक्चुअली क्या बोलते हैं, प्रोपोगेट हो रहा है। ओके दैट्स समझा। एक्चुअली इवेंट प्रोपोगेशन। ओके, आई थिंक आई इवेंट बबलिंग थोड़ा अलग होता है, दैट्स इवेंट प्रोपोगेशन, तो आपका इवेंट प्रोपोगेट होता रहता है। ओके, जब ट्रिकल डाउन होता है बेसिकली। हाँ, तो उसको आप प्रिवेंट करने के लिए आप फिर वो प्रिवेंट क्या बोलते हैं, इवेंट प्रिवेंट स्टॉप डिफॉल्ट। प्रोपोगेशन, स्टॉप हाँ जी। प्रोपोगेशन करेगा। प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है कि उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना उसको प्रिवेंट करता है। जैसे कि अभी लिंक है एंकर टैग का, तो उसमें जब हम्म लिंक पे क्लिक करते हो तो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है कि वो लिंक पे क्लिक करने के बाद रिडायरेक्ट करो वो पेज पे। ओके, तो अगर आप प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दोगे तो वहां पे वो लिंक पे क्लिक करोगे भी तो भी आपका रिडायरेक्ट नहीं होगा। ओके सो डिफॉल्ट बिहेवियर जो होता है पर्टिकुलर टैग का वो प्रिवेंट करता है। ओके 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 ठीक So that's it. That's what is ReactiveX library is. Okay, and so we have a RxJS. So they have implemented RxJS library. Okay, now let's understand what is RxJS and what are the different concepts inside this RxJS. Okay, so this is what pull and push is. Now RxJS has like observables, then subscribers. Okay, these are the two main things. Okay, and then there is a observer also. So observables have a observer. So observable आप consider कर सकते हो कि ये एक बॉस है, ओके, और ऑब्जर्वर उसका एक कोई तो आदमी है जिसपे वो चिल्ला रहा है। सो ऑब्जर्वेबल बेसिकली उसके ऊपर डेटा थ्रो करते रहता है ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वर के ऊपर, एंड जब हम लोग ये ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके ऊपर जो भी डेटा आया वो हम लोग को मिलते जाता है। ओके, सो ऑब्जर्वर बेसिकली ऑब्जर्वर पे डेटा आता रहता है एंड बेसिकली ऑब्जर्वर आगे आगे भेजता रहता है एंड सब्सक्राइबर उसको सब्सक्राइब करता रहता है। ऑब्जर्वेबल ये पूरे का रैपर होता है। ओके, so you can consider observable as a wrapper around this observer and subscriber. तो सब्सक्राइबर बेसिकली सब्सक्राइब करता है ऑब्जर्वर को और ऑब्जर्वर बेसिकली रिस्पॉन्स रिटर्न करता रहता है। We will see that how we can achieve that. Okay, but that's what your observable and observer and subscribers are. There are a lot of other things are also there like operators and subjects and all, so we'll see them. But sorry, that is what your that is what your RxJS and observables are. Okay, now
let's understand first difference between a promise and observable. So first ये चीज समझा कि observable या RxJS क्या होता है. yes आगे sir. हम लोग उसका एग्जांपल्स देखेंगे, सो प्रैक्टिकली आपको और अंडरस्टैंड आ जाएगा. यहाँ पे ना कंपेयर observables to other techniques, compared to other सबसे प्रॉमिस की है जिसके साथ कंपेयर कर. सो यहाँ पे you will see like differences between them. There's a cheat sheet as well. Okay, and basic difference यहाँ पे नहीं है क्या है. Observables are declarative. Computation does not start until subscription. Okay, computation does not start until subscription. मतलब जब तक आप उसको सब्सक्राइब नहीं करते तब तक आपका ऑब्जर्वेबल आपको डेटा देता नहीं. ओके, तो जैसे मैंने बोला था ना कि लाइक यू हैव अ सीसीटीवी कैमरा, और वो सीसीटीवी कैमरा से आप कंटिन्यूअसली वीडियो कैप्चर करते जा रहे हैं, बट जब तक आप सीसीटीवी कैमरा को कनेक्ट नहीं करते तब तक आप वो देख नहीं पाओगे. आप अगर मोबाइल को कनेक्ट करते तो मोबाइल पे देख सकते हो, आप डिवाइस आपका टीवी पे कनेक्ट हो तो टीवी पे देख पाओगे, बट जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करते तब तक वो कुछ सब कुछ कैप्चर कर लेगा, आप कुछ नहीं देख पाओगे. ओके, so that is what subscription observable is. Okay, so observables you can say they are lazy. So unless and until you subscribe to them, you will not receive a value. That means आप अगर उसको फंक्शन ऑब्जर्वेबल का फंक्शन कॉल भी करते हो तो भी आपको वैल्यू रिसीव नहीं होगा जब तक आप उसको सब्सक्राइब नहीं करते. ओके, सो this makes observable useful for defining recipes that can be run whenever you need the result. So ये बेसिकली बहुत हेल्पफुल है. जब जब भी आपको रिजल्ट आपको जब चाहिए तभी आप उससे ले सकते हो. ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मैंने अभी कॉल किया तो अभी चाहिए, मैंने अभी कॉल किया बट मुझे रिजल्ट बाद में चाहिए. ओके, सो आई कैन डू दैट थिंग, बाद में सब्सक्राइब करके उससे ले सकते. ओके, सो ऑब्जर्वेबल्स प्रोवाइड मेनी वैल्यूज while promises provide only one value. Okay, so promises can provide you only success response or failure response, but observable can provide successful responses, multiple successful responses, और failure response हो जाएगा तो वो वहीं पे stop हो जाता है. एक बार अगर error आ गया तो observable वहीं पे stop हो जाता है. We will see that later on. Observables differentiate between chaining and subscription. Promises only have dot-then clauses. This makes observable useful for creating complex transformation. ये इतना नहीं समझेगा, इसके लिए ऑपरेटर थोड़ा समझना पड़ेगा, वो हम लोग बात करेंगे. Observable subscribe is responsible for handling errors. Promises push errors to the child promises. ये छोड़ दो. So basically observables में क्या है कि once you subscribe to it, okay, आप उसको unsubscribe भी कर सकते हो. मतलब मैंने अगर कंटिन्यूसली मुझे रिस्पॉन्स मिलते जा रहे हैं, मैं अगर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर सीसीटीवी कैमरा है आपका तो कंटिन्यूसली आपका देखते जा रहे हैं, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया टीवी को तो मेरा टीवी पे मुझे दिखते जा रहा है, बट जैसे मैं टीवी से डिस्कनेक्ट कर दूंगा मैं वहीं पे मेरा ऑब्जर्वेबल स्टॉप हो जाएगा. दैट मीन्स आई कैन अनसब्सक्राइब टू इट, बट वो तो डेटा वहां पे आता रहता है, बट वो आपको बेसिकली आप उसको जब मैंने सब्सक्रिप्शन निकाल दिया तो आपको डेटा नहीं मिलेगा. ओके, वैसे प्रॉमिस के केस में नहीं होता. एक बार आपने प्रॉमिस कॉल कर दिया, आपने फंक्शन कॉल कर दिया, वो तुरंत कॉल हो जाता है, तो वो तो एक तो लेजी नहीं होता. ओके, और जब उस कॉल हो गया तो जब उसका आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, आप उसको बीच में कैंसिल नहीं कर सकते. ओके, सो अगर वो कॉल हो गया तो जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आता आप वो आपको जब उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा आपको मिल जाएगा. ओके, वो आप बीच में कैंसिल नहीं कर सकते, देयर इज ऑब्जर्वेबल्स कैंसिल कर सकते हैं. ओके, इसका बहुत फायदा है. आपको मैं बाद में एक एग्जांपल देके बताऊंगा हाउ इट विल बी हेल्पफुल. ओके, बट दैट इज व्हाट योर ऑब्जर्वेबल्स एंड प्रॉमिसेस आर. ओके, फिर नीचे उन्होंने दिया है कि हाउ यू कैन क्रिएट एन ऑब्जर्वेबल, हाउ यू कैन सब्सक्राइब इट. ओके, वी विल सी ऑल ऑफ दिस. ओके, सो दैट इज व्हाट योर ऑब्जर्वेबल्स, डिफरेंस बिटवीन योर ऑब्जर्वेबल एंड सब्सक्राइबर. ओके, now let's see how to create a simple observable. Okay, now observable create करने के लिए right, like observable में basically creational there are operators जैसे मैंने जैसे बोला ना कि वो operations perform करते हैं. Okay, so there are like various types of operators. एक होता है creational operator, so basically वो आपका observable create करने के लिए यूज होते हैं. दूसरा होता है आपका filter operator जो filtering करते हैं. दूसरा होता है मैप वाले ऑपरेटर, तो मैप करते हैं, और भी बहुत सारे हैं.
ओके, बट इतने सारे यूज इतने बट ये सारे सारे तो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में है तो सही। है, बट जावास्क्रिप्ट में जैसे आप बोलोगे ना, ये सब अगर फिल्टर करना है तो एरे पे करते हैं। एरे में आपको मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, आपका क्या होता है कि आपका सिंक्रोनस होता है, तो आपको एक साथ सारा डेटा मिलता है, राइट। वो बेसिकली एक ही साथ पूरा आप रिस्पॉन्सेज ले रहे हो, वैल्यूज। वेराज ऑब्जर्वेबल में जब डेटा आएगा तभी मिलेगा, राइट। ओके। ऑब्जर्वेबल में जब, अभी वो कंटिन्यूस है ना, अभी जब उसके पास डेटा आएगा तभी उसको मिलेगा, तो जब ये आएगा तभी उसके ऊपर फिल्टरिंग करना है, तो वो तो आपका एरे के फिल्टर फंक्शन से नहीं चलेगा, ओके। बिकॉज एरे में आपका ऑलरेडी एरे ओके, सो है ना। बेसिकली हम लोग को वो फंक्शन यहाँ पे फिल्टर का लॉजिक लिखा है उसको बार बार कॉल करना पड़ेगा करेक्ट, टू फिल्टर द एरे, यू बट विल सी ये दैट, मैं एरेस। आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। तो पहले देख लेते कि सिंपल मेरा एक ऑब्जर्वेबल बनाना है तो कैसे बनाते हैं। ओके, लेट्स यूज दिस प्रोडक्ट सर्विस इटसेल्फ, यहीं पे बनाते हैं। ओके, नाउ टू क्रिएट अ सिंपल ऑब्जर्वेबल, लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक काउंट ऑब्जर्वेबल बनाता हूँ। अभी ऑब्जर्वेबल जनरली जो आप ऑब्जर्वेबल के वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो ना, तो वी यूज डॉलर सिंबल। ओके, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए नॉर्मल वेरिएबल और ऑब्जर्वेबल वेरिएबल से डिफरेंशिएट करने के लिए यूज डॉलर सिंबल। ओके, so after this you can specify the observable. Okay, now to create a normal simple observable you can use off function. Okay, you can see off function is coming from your RxJS itself, so you can just import it. You can see it's been imported from RxJS, and inside this you can pass as many values as you want. Okay, so मैंने let's say 10 पास किया, फिर यहाँ पे 15 किया, फिर 21 किया। okay, तो let's say और एक 17 किया। ओके, सो आई हैव पास 4 वैल्यूज। ओके, जनरली हम लोग इसको एरे कंसीडर करते हैं, तो एरे में आपके सारे वैल्यूज एक साथ मिल जाते हैं। ओके, बट दिस इज लाइक वो एक एक वैल्यू आपको रिटर्न करता है। ओके, सो अगर मुझे ये यहाँ पे अगर मैं कॉल करता हूँ, तो ये मैंने काउंट डॉलर वेरिएबल को असाइन किया। आप यहाँ पे देख सकते हो काउंट डॉलर का टाइप है ऑब्जर्वेबल ऑफ नंबर। ओके, बिकॉज ऑफ क्या कर रहा है, इट इज रिटर्निंग ऑब्जर्वेबल ऑफ नंबर, बिकॉज यहाँ पे हम लोग नंबर असाइन कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे इफ आई जस्ट कॉल दिस डॉलर, दिस लाइक दिस डॉट काउंट डॉलर, ओके, ये आपका ऑब्जर्वेबल है, तो ये लेजी होता है, ये आपको वैल्यूज देगा नहीं। अगर आप इसको कंसोल डॉट लॉग मारोगे यहाँ पे, आपको कोई वैल्यूज नहीं मिलेंगे। मैंने वहाँ पे 10, 15, 21, 17 लिखा है, बट अगर आप यहाँ पे चेक करोगे अभी, यू विल नॉट गेट एनी वैल्यू। रिफ्रेश दिस, सी यहाँ पे ऑब्जर्वेबल लिख के आ रहा है। ओके, एंड इसके अंदर आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा। ओके, देयर इज नो वैल्यू है। सी ये देख सकते हो, दिस इज लेजी, ये आपको वैल्यूज नहीं देगा कहीं पे भी। ओके, ये वैल्यूज कब देगा, जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे। ओके, सो हाउ डू यू सब्सक्राइब टू दिस। सो इसको सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन जस्ट कॉल दिस डॉट काउंट डॉलर डॉट सब्सक्राइब। ओके, और सब्सक्राइब करके यहाँ पे यू विल रिसीव द वैल्यू। सो लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ वैल, एंड इट्स अ कॉल बैक फंक्शन। ओके, यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग मार दो वैल, यहाँ पे आपको वैल दिखेगा, वैल्यू मिलेगा। ओके, एंड दिस इज सिंगल रिस्पॉन्स, ईच एंड एवरी वैल्यू इनसाइड दिस ऑफ इज नथिंग बट अ सिंगल रिस्पॉन्स। तो आपको एक एक वैल्यू प्रिंट कर मिलेगा। यू कैन चेक दिस 10, 15, 21, 17। सिंस ये एक एक रिस्पॉन्स है, इसके लिए आपको ऐसे मिल रहा है। ओके, वेरएज अगर आप एरे देखोगे तो एरे के केस में क्या होता है कि एरे आप डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है। ओके, अगर मैंने यही एरे डिक्लेयर किया होता तो आपका एरे पूरा प्रिंट हो जाता है, बट वही आपका ये जो है एक एक रिस्पॉन्स है, इसीलिए आपको हर बार एक एक रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, so that's how your observables are like, from a simple values you can create observables. Okay, and off में आप कुछ भी डाल सकते हो। Okay, you can enter a single number, you can enter a string. Okay, let's say RxJS ऐसा कुछ, सबको वो भी मिल जाएगा। That is also a response. Okay, you can add true false as well. Okay, तो बुलियन वैल्यू भी डाल सकते हो, तो बुलियन वैल्यू भी मिल जाएगा। यू कैन ऐड ऑब्जेक्ट एज वेल। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। इवन यू कैन ऐड एरे एज वेल। तो अगर एरे आपने ऐसे डाल दिया स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे मैंने लिखा 1, 2, 3, so this entire array is nothing but a response.
1 comma 1 2 3 these are not a response, this entire array is a response. Okay, so आप देखोगे you'll see 1 10 15 21 17 RxJS 2 and this entire array is one response. Okay, so that's how you can create a simple observable using off function, and then you can subscribe to it. Understood, everyone? Yes, sir. How to create an observable and how to subscribe to it? Yes, sir. Okay, write it down, then I will tell you how will you create an observable, your own custom observable. ये कंस्ट्रक्टर सर इनिट मेथड जिससे काम करता है क्या इसमें? कौन सा? ये हाँ, मतलब कोई भी अगर कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं हम, उसके अंदर कुछ इनिशियलाइज कर रहे हैं तो वो क्लास का कंस्ट्रक्टर है ना? तो वो इनिट जो भी हम उसके अंदर देंगे उसको कॉल कर देगा ना पहले, जैसे इनिट मेथड कॉल वर्क करता है पाइथन में। हाँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट होता है वो वैसे। सो कंस्ट्रक्टर बेसिकली जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना तभी कॉल होता है। ओके, अभी हम लोग तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट कर रहा है? डिपेंडेंसी इंजेक्टर। ओके, ओके। तो हम लोग जब प्रोडक्ट लिस्ट में यहाँ पे इसको इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो डिपेंडेंसी इंजेक्टर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है ना, तो वो आपको यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और तभी ये उसको प्रिंट हो रहा है आपका। डन। डन, ठीक है। So that's how you can create a simple observable, okay, using off function. There are other functions as well, like you can use from event, okay, like from any event you want to create an observable, you can create it. Okay, now let's see how to create your own custom observable. Okay, so let's say I name it as my observable dollar equals to, okay, to create a custom observable you have to write new observable. Okay, by using observable class you can create your own observable. Okay, and in this observable you will have a function, okay, which will have a observer. Okay, and in this observer, okay, you have to emit a response. Okay, emit a response means this observable basically has one function called as next. Okay, so this next function will basically give you the values, the next response values. Okay, so here I can say 10. Okay, so 10 will be the response. So if I say observer dot next, okay, 14, so 14 will be the next response. Okay, so if you want to check, I'll comment this one, and I can use this dot my observable dot subscribe value, use console.log and value. Okay. So if I do this, so if I subscribe to this my observable, I'll receive 10 and 14 as two different responses. You can see 10 and 14 here. Okay, so if I want to send one more response, yes, if I want to send one more response, let's say RxJS, something like this, so your RxJS will be also be sent. Okay, so this way you can create your own custom observable. Now here you can perform your own logic, okay, and based on that logic you can return emit a next value, so that whenever the value is emitted you will receive it. Okay, so let's say just for example, I'm doing some manipulation or some logic, I'm performing some logic, okay, and it is taking some time. Okay, let's say it is reading from a file, and after reading is completed I want to emit a response. Okay,
So I will just purposefully I will add a delay using set timeout. Okay. And in this set timeout, I will call a function, let's say after 2 seconds. So after 2 seconds, I will call a function. Okay. And that function will basically emit this observer dot next value. Okay. Let's say after 2 seconds. Yeah. Okay. So you will receive 10, 14 RxJS immediately because they are immediately emitted. But this value is emitted after 2 seconds. Okay. So you will receive it after 2 seconds. So if I save it and refresh, you will see 10, 14 RxJS after 2 seconds. You will see after 2 seconds. So you can see if my responses are asynchronous. Okay. So they will also be received because you have subscribed to that. Okay, you have subscribed to that observable. So unless and until your observable is unsubscribed or it is completed, you will going to receive those values. Okay, so that's how basically you can create your own custom observable. Understood, everyone? पर वापस रिपीट करो ना सर. ये वाला सी So, ये ऑब्जर्वेबल क्रिएट करना मतलब एक ऑफ जैसा हम लोग क्रिएट करें ना, ऑफ जैसा ही है. सो यहाँ पे भी when we want to create your own custom observable, we use observable class. Okay, in the observable class we have a callback function which is nothing but accepts a observer object. In this observer object we have a next function. Next function will basically give you the next value or next response value. Okay, so इसमें आप जो चाहिए वो next में as a response भेज सकते हो. Okay, बट यहाँ पे क्या होगा कि आप जैसे आप तुरंत भेज रहे हो ना, तो आपने जैसे सब्सक्राइब कर लिया आपको तुरंत वो वैल्यूज मिल जाएंगे. ओके, इमीडिएटली यू विल गेट ऑल दिस वैल्यूज. बट अगर सपोज आपको कोई लॉजिक परफॉर्म करना है, जो लॉजिक लेट्स से कुछ टाइम लेने वाला है, या लेट्स से कि आप एपीआई कॉल कर रहे हो और एपीआई का रिस्पांस आने के बाद मुझे वो रिस्पांस भेजना है. ओके, सो यहाँ पे लेट्स से इंस्टेड ऑफ सेट टाइम आउट वो एपीआई कॉल किया मैंने और वो एपीआई सपोज 2 सेकंड के बाद आया, तो 2 सेकंड के बाद आने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मुझे भेजना है. तो आई कैन यूज दिस ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट. सो 2 सेकंड के बाद वो रिस्पॉन्स भेज देगा और वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सिंस हम लोग ने सब्सक्राइब करके रखा है तो जब भी उसमें वैल्यू आता रहता है वो वैल्यू रिसीव करेगा और वो दिखाता जाएगा. ओके, फिर कितने भी टाइम के बाद आने दो. ओके, बिकॉज वो कंटिन्यूसली कनेक्टेड है. ओके, कनेक्टेड होने की वजह से लाइक सब्सक्राइब्ड है, सब्सक्राइब्ड होने की वजह से वो उसको जब भी वैल्यूज आते रहते हैं वो लेता रहता है और डिस्प्ले करता रहता है. ओके, बट यहीं पे अगर ये कंप्लीट हो जाएगा या फिर ये सपोज मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया कल जाके, तो उसमें जो भी वैल्यू आप भेजते जाओ उसको नहीं मिलेंगे. ओके, वी विल सी दैट सिनेरियो एज वेल, बट दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली सब्सक्राइब टू इट. ओके, और आप देख सकते हो कि असिंक्रोनस रिस्पॉन्सेज भी वो हैंडल कर सकता है. और वैल्यू कहाँ से मिलेगा सर ये ऑब्जर्वर को, लाइक जो ऑब्जर्वेबल हमने ऑब्जर्वर बनाया है, ये ऑब्जेक्ट जो बनाया ऑब्जर्वेबल का, ये हाँ, तो उसको वैल्यू जो हम ऐड कार्ड करेंगे वहां से आएगा, ऐसा है क्या? एड कार्ड का अभी फिलहाल कुछ ध्यान मत दो. जो अभी नेक्स्ट में आपने 10 पास किया, देन 14 पास किया, देन RxJS पास किया, हाँ, तो वो कहाँ से आएगा उसमें फिर? वो वैल्यू हम लोग भेजेंगे ना, हमारा कस्टम ओके. ऑब्जर्वेबल बना रहे हैं ना, हम्म. तो हम लोग कस्टम वैल्यूज हम लोग भेजेंगे. ओके. ओके, तो जो वैल्यू भेजेंगे वो वैल्यू यहाँ पे सब्सक्राइब होके आ जाएगा. ओके, अच्छा. फिर इसको टाइम लगने दो, कितना भी टाइम लगने दो, एक बार वो वैल्यू रिसीव हो जाएगा तो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर दोगे. Okay? इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप जब आगे आगे जाओगे तभी आपको पता चलेगा. फिलहाल अभी जस्ट अंडरस्टैंड करते जाओ कि कैसे ऑब्जर्वेबल क्या है. ओके, हम लोग बाद में देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन, बट इतना समझा. यस सर. ओके, लिख लो, हो जाएगा तो बता देना.
तो सर ऑब्जर्वर के अंदर हम लोग कोई भी लॉजिक डाल सकते हैं? कुछ भी आपको जो चाहिए हो। और- आप एक एग्जांपल कंसिडर कर लो कि आपका लोकेशन जो है, ओके, हम्म सपोज आप मोबाइल पे हो, मोबाइल पे आपको कंटिन्यूसली लोकेशन चाहिए, ओके। हम्म तो मोबाइल में एक नेविगेटर, मतलब विंडो डॉट नेविगेटर होता है, हम्म हम्म विंडो डॉट नेविगेटर। तो इससे हम लोग बेसिकली जब वैल्यू लेते हैं, ओके, यहाँ पे आप लैट लॉन्ग वैल्यूज ले सकते हैं इसका, ओके। तो वैल्यू जब भी आप सपोज मैंने थोड़ा सा आगे चल के गया, ओके, एक 10-15 मीटर या फिर 100 मीटर आगे चल के गया, तो मुझे नया लैट लॉन्ग मिलना चाहिए, ओके। तो वो लैट लॉन्ग आपको असिंक्रोनसली मिलेगा, बिकॉज वो नेविगेटर क्या करता है, जब भी उसको नया लैट लॉन्ग मिलता है वो भेजते रहता है। अभी वो भेजते रहेगा, वो असिंक्रोनस है ना, वो आपको बार बार अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए, मतलब मल्टीपल रिस्पॉन्सेज भेजने वाला है वो आपको, राइट। तो उसको आप ऑब्जर्वेबल में रैप कर दो, और जब उसका लैट लॉन्ग मिल जाएगा आप रिटर्न मार दो वहां से रिस्पॉन्स को, ओके ठीक ओके है। ओके हाँ तो आपको रिस्पॉन्सेज मिलते जाएंगे, आप उसको एक बार सब्सक्राइब कर दोगे तो। अब जब ओके आपको नेविगेटर से अनसब्सक्राइब करना है, अनसब्सक्राइब कर दो, आपको लैट लॉन्ग नहीं मिलेगा। ओके डन। डन, ठीक है। सर, हाँ, ये सेट टाइम आउट वाला जो ऑब्जर्वर बनाया आपने, वो कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे? लाइन ऑब्जर्वर मैंने बनाया 17। ये ना। हम्म सी, ऑब्जर्व ऑब्जर्वेबल कैसे होता है कि ऑब्जर्वेबल ये कंटिन्यूअस स्ट्रीम, हम्म ओके। सो एक कंसिडर कर लो कि आपका पाइपलाइन है, ओके, आप नल से पानी ये करते हो, आपका टंकी से पानी आता रहता है पाइपलाइन से। हम्म जब आप टैप ओपन करोगे तब आपका पानी नीचे करेगा, हम्म जब बंद कर दोगे तो पानी नहीं निकलेगा बाहर। हम्म तो ऑब्जर्वेबल भी वैसे ही है, आपका नल को ऑब्जर्वेबल कंसिडर कर लो, और उसका जो टैप है उसको सब्सक्राइबर कंसिडर करो। तो सब्सक्राइब अगर मैंने सब्सक्राइब कर दिया, ओपन कर दिया, तो उसका जो पानी आ रहा है वो आपको मिलेगा। अगर आप बंद कर दोगे तो पानी तो वहीं पे आ ही रहा है ना, बट सिर्फ आपको मिल नहीं रहा है क्योंकि आपने बंद कर दिया है। तो ऑब्जर्वेबल जो है उससे वो रिस्पॉन्स आपका डेटा तो वो कंटिन्यूसली भेजता जाएगा जब भी उसको आता रहेगा, बट जब तक हम लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं तब तक ही हम लोग को रिस्पॉन्स मिलेगा। एक बार मैंने सब्सक्राइब बंद कर दिया तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ऑब्जर्वेबल को रिस्पॉन्सेज भेजने के लिए आई एम यूजिंग ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट, ओके। सो ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट से क्या हो रहा है कि नया नया रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, ओके। मैंने यहाँ पे जस्ट डिले एक क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डिले डाल दिया सेट टाइम हम्म आउट का यूज करके। हम्म तो 2 सेकेंड के बाद मैंने उसको रिस्पॉन्स भेजा, 2 सेकंड के बाद रिस्पॉन्स भेजने के बाद भी उसको यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है। हम्म दैट मीन्स मेरा ऑब्जर्वेबल का स्ट्रीम मेरा चालू है ना कंटिन्यूअसली। तो जब ओके उसमें डेटा आया तो उसने ले लिया, ऐसा है। ओके ओके सर। ठीक है, डन। चलो अभी नेक्स्ट थिंग देख लेते हैं कि नाउ, ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है कि ऑब्जर्वेबल को आप एक ही बार सब्सक्राइब करता है ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन सब्सक्राइब इट मेनी टाइम्स, ओके, एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एक ऑब्जर्वेबल को, ओके। मतलब क्या कि अगर सपोज मैंने ऐसा कर दिया, एक बार और एक बार लिख दिया, उसी सेम ऑब्जर्वेबल को मैंने और एक बार एक सब्सक्राइब कर दिया, जैसे 1 लिखता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे 2 लिखता हूँ, ओके। सो मैं जितनी बार सब्सक्राइब करूंगा ना उतनी बार मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं, ये देखो 1 के लिए आया, 2 के लिए आया, और बाद में 1 और 2 के लिए, दोनों के लिए भी आ गया, ओके। सो अगर आपको बेसिकली अगर मल्टीपल जगह पे अगर ऑब्जर्वेबल को रिस्पॉन्सेस लेने हैं, यू कैन डू मल्टीपल टाइम सब्सक्रिप्शन,
अंडरस्टूड. सो आपको ऑब्जर्वेबल पे आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन लगा सकते हो. ओके. तो जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपका सीसीटीवी कैमरा है वो अगर कैप्चर कर रहा है डेटा, तो आप उसको मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो. मोबाइल को कनेक्ट करो, आपका टीवी को कनेक्ट करो, लैपटॉप को कनेक्ट करो, आपको सब जगह पे सेम ही डेटा मिलेगा. दैट्स अ मल्टीपल सब्सक्रिप्शन. समझा? ऑब्जर्वेबल्स को वी कैन सब्सक्राइब मल्टीपल टाइम्स. जो भी वैल्यू एक ऑब्जर्वेबल वो ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा है वो आप सब्सक्राइब करके ले सकते हो जहां पे चाहिए वहां पे. समझा? मल्टीपल सब्सक्रिप्शन. यस सर. यस. Okay, you can try this out. Okay, I'll just comment it out. Now observable में okay, जैसे मैंने यहाँ पे my observable dot subscribe लिखा. Okay, subscribe में we can have like एक तो डायरेक्टली आप कॉल बैक फंक्शन लिख सकते हो. वो कॉल बैक फंक्शन में आपको हमेशा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आता है. ओके, बट समटाइम्स यू मे रिसीव एरर रिस्पॉन्स. ओके, और समटाइम्स द ऑब्जर्वेबल में गेट ऑटोमेटिकली गेट कंप्लीटेड, मतलब उसका काम खत्म हो गया, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया. ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि ऑब्जर्वेबल हमेशा चालू रहे, और उसका काम खत्म हो रहा है तो वो कंप्लीट भी हो सकता है. ओके, तो इन दैट केस यू विल हैव अ कंप्लीट. ओके, कंप्लीट हो जाएगा. तो उसके लिए अगर आपको ये तीनों हैंडल करने हैं तो आप कैसे हैंडल करोगे? सो फॉर दैट यू नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट हियर. ओके, एंड इन दैट ऑब्जेक्ट यू विल हैव थ्री कीज. ओके, एक होता है नेक्स्ट फंक्शन. ओके, सो वी कैन से वैल्यू एंड कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिख दिया और वैल्यू प्रिंट किया. ओके, सो दिस इज नेक्स्ट फंक्शन. यू हैव अ एरर फंक्शन. ओके, एरर फंक्शन में आपको एरर आ जाएगा. कैन अगेन प्रिंट अ लॉग फॉर एरर. यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, कॉमा आएगा बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट और ये की वैल्यू पेयर है. सो ये नेक्स्ट फंक्शन का नाम है एंड दिस इज अ फंक्शन. एरर ये फंक्शन का नाम है एंड दिस इज अ फंक्शन. ओके, एंड देन यू हैव अ कंप्लीट एज वेल. कंप्लीट भी एक फंक्शन ही है. कंप्लीट को सिर्फ पैरामीटर नहीं होता, तो अब यहाँ पे डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग लिख सकते हो, लिख सकते हो कंप्लीटेड. ओके, सो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो लेट्स सी क्या होता है. आप देखो 1014 RxJS आया, आफ्टर 2 सेकेंड्स आया, कंप्लीटेड प्रिंट नहीं हुआ है. ये जो कंप्लीटेड है, कंप्लीट फंक्शन का कंप्लीटेड, ये प्रिंट नहीं हुआ है. एरर तो ऑब्वियसली प्रिंट नहीं है बिकॉज देर इज नो एरर. मैं इसको चाहिए तो कंसोल डॉट एरर करता हूँ सो तो वो रेड कलर में दिखे. ओके, तो एरर तो है ही नहीं कुछ, तो एरर तेरे को दिखेगा नहीं. तो आप देख सकते हो कंप्लीटेड प्रिंट नहीं हुआ है, दैट मीन्स मेरा ऑब्जर्वेबल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो चालू ही है आपका. ओके, जब तक मैं यहाँ से डेटा भेजते जाऊंगा और भी बाद में डेटा भेजूंगा तो भी उसको मिलेगा. अगर आपको ऑब्जर्वेबल को कंप्लीट करना है तो यू कैन कंप्लीट इट यूजिंग ऑब्जर्वर डॉट कंप्लीट मेथड. देखो मैंने यहाँ पे RxJS के बाद कंप्लीट किया है, तो ये सेट टाइम आउट डालो, कुछ भी डालो, उसके बाद कुछ भी चलेगा नहीं. ओके, सो आप यहाँ पे देखोगे 1014 RxJS कंप्लीट होगा और ये कंप्लीटेड प्रिंट होगा. ओके, एंड कंप्लीटेड प्रिंट होने के बाद ये आप बाद में कुछ भी भेजो उसको नहीं मिलेगा. ओके, बिकॉज एक बार कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट हो गया. ओके, देखो 1014 RxJS कंप्लीटेड आया, अभी देखो आफ्टर 2 सेकेंड्स आ ही नहीं रहा है बिकॉज आपका ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो चुका है. So once completed, you cannot send any response now. Okay? आप यहाँ पे इसको इसके पहले करोगे तो RxJS भी नहीं मिलेगा. 1014 मिला, कंप्लीट हो गया. सो अगर आपको ऑब्जर्वेबल कंप्लीट करना है तो यू कैन यूज डॉट कंप्लीट, बट आफ्टर दैट whatever you send using next method will not be sent to the subscription. Okay, वो आप सब्सक्रिप्शन को मिलेगा ही नहीं सब्सक्रिप्शन. ओके, दैट्स हाउ यू कैन यूज कंप्लीट. बट अगर सपोज मैंने इसको यहाँ से निकाल के अगर यहाँ पे लिख दिया तो क्या होगा? विल इट प्रिंट 1014 RxJS तो प्रिंट होगा ही, बट आफ्टर 2 सेकेंड्स प्रिंट होगा क्या? नहीं. यस सर, होगा शायद. नहीं होगा. नहीं होगा. नहीं, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे सेट टाइम आउट लिखा ना, तो ये ऑब्जर्वेबल ये फंक्शन जो है ये 2 सेकेंड के बाद कॉल होने वाला है. ये हाँ राइट. असिंक्रोनस है, तो उसके पहले आपका कंप्लीट हो गया ना. उसके पहले ही कंप्लीट हो गया तो आपको आफ्टर 2 सेकेंड्स प्रिंट ही नहीं मिलेगा. देखो पहले ही प्रिंट कंप्लीटेड प्रिंट हो गया, अभी आफ्टर 2 सेकेंड्स कहाँ से आएगा? राइट. ओके,
So that's So your async पाइपलाइन call. जैसा कुछ नहीं है इसमें जहाँ पे रिस्पॉन्सेस होल्ड करता है वो, ऐसा कुछ? वो आपके ऊपर है, लॉजिक आपके ऊपर है। अगर मैं इसको कंप्लीट इधर करना तो इधर कर दूंगा, तो आफ्टर 2 सेकेंड्स के बाद कंप्लीट हो जाएगा। ओके। सो दैट लॉजिक डिपेंड्स ऑन यू। अंडरस्टूड एवरीवन? आप मल्टीपल बार कंप्लीट नहीं कर सकते, एक ही बार कंप्लीट, आप मल्टीपल बार करो लेकिन वो एक ही बार कॉल हो। दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट योर ऑब्जर्वेबल। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। Yes. ओके, ये लिख लो, फिर एरर का बताता। डन। देन 1 मिनट सर, 2 मिनट सर। यस यस, क्या? डन सर। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सब लोग को समझ में आ रहा है ना? Anybody is there who is not is not getting? Okay, okay, ठीक है। Now in whenever you are doing observable, okay, you can do next. So next से आपको हमेशा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ जाएगा, बट कंप्लीट से आपको कंप्लीट रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। But sometimes your observable may throw some error, there might be some errors, okay, जहाँ से error आ रहा है, और जब error आता है तब क्या होता है, okay, let's see. So मैं यहाँ पे error throw करता हूँ, throw new error, some error occurred. जैसे error throw होता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 14 प्रिंट मिलेगा, ओके। आप यहाँ पे चेक करो, यू विल सी 10 and 14, बट 10 और 14 के बाद एरर थ्रो हो चुका है, दैट मीन्स योर सम, आप देख सकते हो लाइन नंबर 40 पे, यहाँ पे आपका ये वाला लाइन पे आपका एरर प्रिंट हो गया, कंसोल डॉट एरर, ओके। दैट मीन्स वो आया एरर में, आपका एरर प्रिंट हो गया, बट फर्स्ट 2 वैल्यूज प्रिंट हो गए, बिकॉज वहां पे आपका वैल्यू आया, वो वैल्यू प्रिंट कर दी उसने 10 and 14 पे। but later on RxJS print नहीं हुआ, because as soon as it observable encounters an error, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, ओके। इवन वो कंप्लीट भी नहीं होता, आपने देखो कंप्लीट कॉल किया, कंप्लीट भी कॉल नहीं होता, आप कंप्लीटेड देखोगे यहाँ पे कंप्लीट दिखेगा ही नहीं आपको कहीं पर, ओके। सो whenever there is an error, okay, आप डायरेक्टली एरर फंक्शन में आओगे, एंड रेस्ट ऑल थिंग्स आर बेसिकली ओमिटेड, मतलब आगे कुछ भी नेक्स्ट करो, कुछ भी कंप्लीट करो, आपका कुछ नहीं चलेगा, ओके। इफ यू एनकाउंटर एन एरर, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है आपको ऑब्जर्वेबल। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। तो ऑब्जर्वर डॉट एरर भी तो होता है ना? ऑब्जर्वर डॉट एरर, ऐसा हाँ। वो भी होता है, आप इससे भी एरर भेज सकते हो, बट ये तो मैंने जस्ट बीच में ही ऐसा कुछ एरर आया तो बताने के लिए किया, ओके ओके। ओके। आपको खुद से अगर एरर ऐसा कुछ भेजना है तो भेज सकते हो ऑब्जर्वर डॉट एरर से, बट अगर कुछ एरर बीच में आ गया आपके इसमें कोड में, तो एरर तो ऑटोमेटिकली थ्रो हो जाता है,
और वो थ्रो होने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाए। ओके। Done. Then what about others? Done, sir. Okay. Okay. So um, so this is what your observables and their subscriptions are. Okay. I just comment this one. Okay. So as we have this observers, okay, now whatever the data we are getting it here, we're actually receiving it directly and we're printing it. Okay. But observables or RxJS provides you some operators to perform operations on the incoming response. So whatever the response you are getting, you can perform any operation on that response as well. Okay. And you can perform the operation and then that value will be returned or pass on to your subscription. Okay, let's see how this is done. Let's say I have a numbers observable. I will use off function, numbers 1 2 3 4 and 5. So I am emitting 1 2 3 4 5 as numbers. I want to subscribe to it. I will use this dot numbers dollar dot subscribe. Okay, if I do value, I'll receive the value. I can print it in a log. Okay, if I do this, I will receive 1 2 3 4 5. Okay, but let's say I just want whatever the values are emitted, okay, or whatever the values are received, I only want even numbers. I want to discard all the odd numbers. Okay, if this was a array, it was easy. You can use filter function, correct? You can use filter function to just get an even number. Okay, but how do you do this here? Because this val is nothing but a response. Okay, and that response is nothing but 1 2 3 4 5. These are single responses. Okay, they are not a single array, they are single responses. Okay, so to perform any operations, you can simply do some logic here, like if val mod 2 equals to 0, then we will print val, otherwise we will not print val. But you are receiving odd values as well. Okay, you are just checking it inside subscribe function. Okay, I don't want to receive odd values, I just want to receive even numbers. Okay, I don't want to get val as 1 3 5. I don't want odd numbers here. I just want even numbers, even though it is sending all the numbers, but I only want even numbers here. Okay, so in that case, what you can do is you can perform some operations. Now all the operations are basically piped using pipe function. Okay, inside pipe function you can add all the operators whichever you want. Okay, let's say I want to like I want to get only even numbers, right? So for this, in array we have a filter function, right? Filter function does this thing, but this is not an array. Here we are receiving multiple responses. So here also we can use filter, but that filter function, you can see it is coming from your RxJS. Okay, you can enter, you can see the filter function coming from your RxJS. Add brackets here. Okay, and this bracket basically will contain a predicate, so it is like similar to your array filter. Okay, and here you can say val. Okay, and here also you need to return a boolean value. Okay, if that boolean value is true, that means this whatever value number is this, so that number will be passed to subscription. If boolean, if we are returning false,
that means this boolean value will not be passed to the subscription. Okay, so it's like a pipe. Basically यहाँ से डेटा आ रहा है, यहाँ पे फिल्टर हो रहा है और वो आगे जा रहा है. ओके, यहाँ पे अगर मेरा वैल्यू अगर मैं यहाँ पे val mod 2 इक्वल इक्वल्स टू 0 लिखता हूँ, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, 1 के लिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. ओके, तो फॉल्स हो गया मतलब यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो गया, दैट मीन्स ये वैल्यू सब्सक्रिप्शन को नहीं जाएगा. 2 आया, 2 mod 2 इक्वल इक्वल 0 हो गया, ट्रू हो गया, तो यहाँ पे ट्रू आया, दैट मीन्स वो जो 2 वैल्यू है वो आगे बढ़ेगा. तो यहाँ पे बेसिकली फिल्टर होके कौन सा वैल्यू आगे भेजना है कौन सा नहीं भेजना है ये फिल्टर फंक्शन डिसाइड करता है. ओके, so that's how your filter function works. You can see now 2 and 4. I am only receiving even numbers. I am not receiving odd numbers in my subscription. यहाँ पे देखो मैंने कोई लॉजिक नहीं लिखा है. I am just receiving even numbers here. Understood? This operator, this is called as operator because this is performing operation on it and it is filtering the values here. Understood everyone? Yes, sir. Okay. Try कर लो. Done. Done? बाकी सब लोग का हो गया? Yes? Or no? Yes, sir. Okay. Now this is one operator. I will let's take one more operator. Okay. So let's consider ki whatever the values I'm getting it here. Okay. I want to double those values, or let's say not double. Just add the same value into it. Okay. Or let's say ki let's take a square of it. Okay, whatever the value I am getting it from here, just take a square of it. Okay, तो हाँ मतलब क्या है कि अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स में 1 आना चाहिए, 2 लिख रहा हूँ तो 4 आना चाहिए, 3 लिखूंगा तो 9 आना चाहिए, 4 लिखूंगा तो 16 आ जाए, 5 के 25. हाउ कैन वी डू इट? अगर ये एरे होता सो क्या यूज करते हैं हम लोग? Map. करेक्ट, मैप यूज करते. सो यहाँ पे भी वी हैव अ मैप ऑपरेटर. वी कैन यूज मैप ऑपरेटर हियर. ओके, map is coming from your RxJS. Okay, then in this map operator you can add the same thing which you do for arrays. Okay, so you have a val, you can return val into val. Okay, so this will return a square and whatever the value it is returned is basically passed to the subscription. So यहाँ से वैल्यू आता है, मैप में जाता है, मैप में जो भी रिटर्न होता है वो रिटर्न्ड वैल्यू सब्सक्रिप्शन को मिलता है. So यहाँ पे you will see for every value which is emitted, you will see the square of it for it value. Understood? Map operator. समझा सबको? Yes. तो बेसिकली ये एरे के मैप की तरह ही काम करता है ना, बट एरे के मैप की तरह ही काम करता है सिर्फ, बट इसका डिफरेंस यही है कि ये हर एक रिस्पॉन्स पे काम करेगा. ओके, रिस्पॉन्स मैटर करता है. अगर रिस्पॉन्स में यहाँ पे मैंने एरे लिख दिया
10,20 ते 10 का 20 का 100 200 नहीं होगा। ओके ये एरे है, ये एंटायर एरे पे वो एरे इनटू एरे, देखो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा बिकॉज नंबर एरे पे आप स्क्वायर नहीं निकाल सकते, राइट। सो ये रिस्पॉन्स पे काम करता है, सो आपका जो रिस्पॉन्स है उस पे काम करेगा ये। ओके सर ने ऐसा ही डेटा आया लाइक नेस्टेड एरे आया आया तो तो बेसिकली कैसे आप करेंगे? अभी डिपेंड करता है कि आपका आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि एरे आने वाला है तो यहाँ पे आपको कंडीशन से चेक करो कि आने वाला डेटा एरे है या फिर दूसरा कुछ है, नंबर है। नंबर है तो ही स्क्वायर निकालो, एरे है तो वैसे ही रिटर्न कर दो। ओके ओके या फिर उसमें अगर आपको कुछ करना है तो दूसरा कुछ करो। अगर एरे को आपको स्क्वायर नहीं निकालना है तो एरे को वैसे रिटर्न करो। जैसे कि अगर सपोज यहाँ पे 10 और 20 है, मुझे यहाँ पे अगर ये नंबर है तो ही करूंगा ना। तो यहाँ पे इफ क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ टाइप ऑफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। वैल इज नॉट इक्वल सर, और इक्वल इक्वल्स टू नंबर लिख दिया, हाँ हो भी। नंबर लिख दिया। तो यहाँ पे मैं जस्ट रिटर्न कर दूंगा वैल इनटू वैल, अदरवाइज आई कैन सिंपली रिटर्न वैल। वैल्यू आ रहा है वैसे के वैसे रिटर्न करो, आपको सर देखो। एंड बट वो एरे के इसमें भी हम लोग अगर मैप करना है उसको। हाँ तो यहाँ पे ये कर दो ना, वैल डॉट मैप ओके तो ई, इसको भी कर सकते हैं। हाँ इंटू वी। तो यहाँ पे वो 10 into 100 हो जाएगा, वेरी नाइस ठीक ओके है। समझा सब लोग को? यस एंड डन। अबाउट अदर्स मैं निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर वैल प्लस वैल लिखूंगा तो ये बेसिकली एडिशन करेगा, सो 2 4 6 8 10 लिखेगा यहाँ पे। सो ये जो हम लोग ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, ओके यहाँ पे पाइप क्यों लिखा है? पाइप इसके लिए लिखा है बिकॉज यू कैन परफॉर्म मेनी ऑपरेशन। ओके मतलब मल्टीपल ऑपरेटर्स भी इसमें डाल सकते हो। ओके मतलब कि आई कैन डू फिल्टरिंग एंड देन आई कैन परफॉर्म मैप। ओके यहाँ पे क्या होगा, बट ऑर्डर मैटर करता है, पाइप में ऑर्डर मैटर करता है कि आप कौन सा ऑपरेटर पहले यूज करें। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा, पहले ये क्या कर रहा है, इवन नंबर्स को फिल्टर कर रहा है, और जो इवन नंबर्स आएंगे वो मैप में चले जाएंगे और मैप में उसका एडिशन होके आगे आएगा। ओके सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा 4 and 8। ओके वही अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, मतलब मैप पहले लिख दोगे एंड देन फिल्टर करोगे, तो आउटपुट डिफरेंट हो जाएगा, 2 4 6 8 10 आ गया। बिकॉज क्या हुआ, पहले जब मैंने मैप किया एडिशन किया तो 1 + 1 2 हो गया जो इवन है तो आगे बढ़ गया, 2 + 2 4 हो गया वो भी इवन है आगे बढ़ गया, 3 + 3 6 हो गया वो भी आगे बढ़ गया, 4 + 4 8 वो भी आगे, 5 + 5 10 वो भी आगे बढ़ गया। सो ऑल आर बेसिकली व्हेन आई ऐड देम, सो वो बेसिकली इवन नंबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो आगे फिल्टर हो रहे हैं। ओके बट वही अगर मैं मैप बाद में लिखता हूँ फिल्टर पहले लिखता हूँ तो पहले ही इवन नंबर्स फिल्टर हो रहे हैं और ऑड नंबर्स फिल्टर आउट हो रहे हैं, तो आपका इवन नंबर्स को ही वो एडिशन करके भेजेगा। तो ऑर्डर ऑफ योर ऑपरेटर्स मैटर्स, ओके बट यू कैन परफॉर्म एज मेनी ऑपरेशंस एज यू वांट, ओके इन इन ऑर्डर, एक के बाद एक कर सकते हो। समझा? यस ओके बाकी सब लोग को यस राजेश, सर। सोनाली, यस सोनाली, सर। समीर, सागर, बालाजी, रवि, ऋषिकेश, श्रेयस, प्रियंका, what about you guys?
ठीक है. Okay, so that's how your observables works. Okay, and you have operators. Now ये जो मैंने operators बताए like filter, map, these are just few operators. Okay, एक दो ही operators बताए, but you will have a lot of these operators. Okay, आप RxJS के साइट पे जाके you can go to references and you will find this many operators. Okay, इतने सारे operators है आपके पास. Okay, बट इस डरने की चीज नहीं है, सब सारे ऑपरेटर्स यूज करना ऐसा जरूरी नहीं है. यू विल फाइंड दैट कि इतने सारे ऑपरेटर्स है तो इस ना कब 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 यूज करे क्या करे, डजेंट मैटर. ओके, आपको बेसिकली अगर कौन सा ऑपरेटर देखना है, आप यहाँ पे जाके उस ऑपरेटर का डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो. RxJS में बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन है उसका. ओके, आप यहाँ पे लेट्स से कि मैंने जैसे अभी हम लोग फिल्टर यूज किया, राइट? तो फिल्टर होगा, देखो यहाँ पे फिल्टर. फंक्शन में हाँ फिल्टर, ये देखो, मैं इस पे क्लिक करता हूँ. आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो फिल्टर क्या करता है, कैसे प्रेडिकेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं. उन्होंने नीचे एग्जाम्पल भी दिया है. ओके, फिल्टर का. एंड बट यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने एक डायग्राम भी दिया है. दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज मार्बल डायग्राम. ओके, ये मार्बल मार्बल डायग्राम आपको बहुत हेल्पफुल है. ओके, आप देख सकते हैं दिस इज योर सोर्स. ओके, मतलब ये बेसिकली आपका ऑब्जर्वेबल है जो आप बेसिकली रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं. और यहाँ पे अपने फिल्टर ऑपरेटर लगाए. तो फिल्टर ऑपरेटर में क्या कर रहा है कि x मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 1, मतलब ऑड वैल्यू ही रिटर्न करेगा. सो 0 आएगा तो 0 नहीं मिलेगा, 1 आएगा तो 1 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, 3 आएगा 3 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा. सो यू कैन सी बाय यू लुकिंग एट दिस मार्बल डायग्राम, यू कैन इमेजिन कि ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है. ओके, देयर आर लाइक यू कैन सी अदर फंक्शंस एज वेल, लाइक मैंने जैसे मैप बोला, वी हैव अ मैप आल्सो हियर. सो मैप क्या करता है कि हर एक वैल्यू के साथ मैप करता है. So if you do 10 into x, so हर एक वैल्यू को वो 10 से मल्टीप्लाई करेगा. ओके, यू कैन सी 1 10 2 20 3 30. ओके, और उसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है. देयर आर लाइक लॉट ऑफ अदर ऑपरेटर्स. ओके, आप यहाँ पे जैसे अगर ये फाइंड है, तो फाइंड ऑपरेटर क्या करता है कि ये बेसिकली चेक करता है कि फाइंड्स द फर्स्ट वैल्यू दैट पासेस सम टेस्ट एंड एमिट्स इट. तो ये फर्स्ट वैल्यू फाइंड करेगा. अगर रिस्पॉन्स आपके मल्टीपल आ रहे हैं तो उसमें से फर्स्ट वैल्यू जो मैच होगा वही मिलेगा आपको. यहाँ पे देख सकते हो 3 मैच नहीं हुआ तो नहीं आया, 9 आया 9 मैच नहीं हुआ, मतलब ये कंडीशन से. 15 आया 15 मैच हो गया बिकॉज x मॉड 5 इक्वल टू 0 मैच हो गया, वो फाइंड हो गया, वो मिल गया, वहीं पे स्टॉप हो गया. 20 मैच होता है बट 20 आगे का नहीं जा रहा है. वो फाइंड फंक्शन क्या करता है, फर्स्ट ऑकरेंस ही एमिट करेगा, मतलब फर्स्ट ऑकरेंस मिल गया तो निकाल लेगा. क्या रिस्पॉन्सेस में. तो ये फाइंड फंक्शन है. वैसे आपका फर्स्ट भी है. तो अगर आपके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सेस आ रहा है और उसमें से पहला ही रिस्पॉन्स आपको चाहिए, यू कैन यूज फर्स्ट फंक्शन. ओके, सो वैसे आपका और एक फंक्शन है टेक फंक्शन करके. सो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक फंक्शन. तो आपको जितने रिस्पॉन्सेस चाहिए आप उस पे नंबर स्पेसिफाई करो, तो आपको उतने रिस्पॉन्सेस मिलने के बाद स्टॉप हो जाएगा. सो इफ आई स्पेसिफाई टेक 2, तो वो 2 ही रिस्पॉन्स लेगा, आके रिस्पॉन्सेस नहीं लेगा. ओके, सो वैसे ही और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑपरेटर्स है, और मार्बल डायग्राम से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे वर्क करता है, क्या करता है. देखो मैक्स फंक्शन भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आपके पास रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं तो उसमें जब आपका रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाएगा उसमें से मैक्सिमम वैल्यू आपको रिटर्न करेगा. ओके, ये मैक्स तभी काम करेगा जब आपका कंप्लीट होता है. आपका जब ऑब्जर्वेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा तभी ये आपको रिटर्न करेगा मैक्स वैल्यू. ओके, सो दैट्स हाउ योर मैक्स वर्क. मीन भी है. ओके, आपका और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे देख सकते हो. ओके, यू कैन चेक देम. ओके, एक एक चेक कर सकते हो. देयर इज अ रेंज आल्सो. रेंज बेसिकली आपको रेंज क्रिएट करता है. दिस इज अ क्रिएशनल ऑपरेटर. ओके, ये बेसिकली ऑब्जर्वेबल क्रिएट करता है. तो आप इसको रेंज दे दो 1 to 10, तो ये 1 to 10 का नंबर्स क्रिएट कर देगा, रेंज क्रिएट कर देगा. ओके, सो दैट्स अ रेंज. वैसे इंटरवल भी है. तो इंटरवल क्या करता है, आप इसमें मिली सेकंड स्पेसिफाई करो, उतने उतने मिली सेकंड्स के बाद एक एक वैल्यू रिटर्न करता जाएगा. so, यहाँ पे स्पेसिफाइड 1000 मिली सेकेंड्स, दैट मीन्स हर एक सेकेंड में एक एक नंबर रिटर्न कर आपको मिलते जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो क्रिएशनल ऑपरेटर. सो ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे. okay? कुछ ऑपरेटर ऐसे भी होते हैं जो कॉम्बिनेशनल होते हैं, मतलब मल्टीपल ऑब्जर्वेबल्स कंबाइन करके एक ऑब्जर्वेबल बनाते हैं. ओके, सो वैसे टाइप के भी ऑपरेटर होते हैं. सो सी लाइक
you have lot of operators here. Okay, and marble diagram से आपको easily समझ में आ जाएगा. You can also do Ajax API call और Ajax call भी कर सकते हो using this. Web sockets को भी connect कर सकते हो using this. Okay. So this is reference. अभी इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स है. अभी आपको कभी समझ में नहीं गए कौन सा ऑपरेटर कब यूज करना है, कौन सा यूज करूँ. ओके, सो उसके लिए ना उन्होंने एक मस्त से डिसीजन ट्री दिया है यहाँ पे, ऑपरेटर डिसीजन ट्री. ओके, यहाँ पे आके यू कैन आपका जो सिनारियो है, आपको जो डिसीजन लेना है वो आप यहाँ से चेक करो, आपको वो एग्जैक्ट ऑपरेटर बताएगा, ये ऑपरेटर आपके लिए यूजफुल है. ओके, लेट्स से कि मेरे पास आई हैव वन एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेबल. जैसे मेरे पास ऑब्जर्वेबल है, जो जैसे मैंने ऑफ बनाया है जैसे ऑब्जर्वेबल है. ओके, सो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे बोलेगा आई वांट टू चेंज ईच एमिटेड वैल्यू, मतलब मुझे एमिटेड वैल्यू चेंज करना है. ओके, तो जैसे हम लोगों ने वैल प्लस वैल किया, राइट. इफ आई क्लिक ऑन दिस, नाउ ये बोलेगा कांस्टेंट वैल्यू को एमिट, कांस्टेंट वैल्यू चेंज करना है या फिर टू बी कैलकुलेटेड थ्रू अ फॉर्मूला. तो हम लोगों ने फॉर्मूला कैलकुलेट करके ही निकाला है. तो आपको देखो, आप इस पे क्लिक करोगे तो एग्जैक्टली बोलेगा मैप ऑपरेटर यूज करो. फिर बैक करो, अगर मैं बोलूंगा टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू तो इस पे बोलेगा मैप टू ऑपरेटर यूज करो. ओके, तो मैप टू ऑपरेटर में वो कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न करेगा. ओके, आप उसको फिर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे क्लिक करके उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक कर सकते हैं. यहाँ पे अच्छा, वो जरा प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन लेना देखना पड़ेगा. अभी देखो मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेबल है. आई वांट टू पिक अ प्रॉपर्टी ऑफ ईच एमिटेड वैल्यू, मतलब मुझे एक प्रॉपर्टी यूज पिक करना है. यू कैन यूज प्लग ऑपरेटर. ओके, इफ यू सॉरी, if I have an existing observable, I want to ignore values. Okay, इस पे क्लिक करो, all together तो ignore elements. अगर आपको from the start of the observable, जब start से मुझे ignore करना है, okay, based on given amount, तो skip करो. skip में आप number specify करो, तो वो उतने number of elements, start के उतने number of elements skip कर देगा और उसके आगे के ले लेगा. मतलब मेरे पास 10 रिस्पॉन्सेस है, मैंने स्किप 3 बोला तो पहले 3 स्किप हो जाएंगे, आगे के ले लेगा. ओके, अगर किसी कंडीशन के ऊपर है बेस्ड ऑन कस्टम लॉजिक, यू कैन स्किप वाइल. तो एक कंडीशन डाल दो, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन वो स्किप करते जाएगा. एक बार वो कंडीशन फॉल्स हो गया तो आपको आगे के मिलते जाएंगे फिर. ओके, जब तो कंडीशन ट्रू है वो स्किप करते जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो गया फिर आगे के सारे वैल्यूज ले लेगा. सो वैसे आप लगा सकते हो. फ्रॉम द एंड ऑफ द ऑब्जर्वेबल वो भी लिख सकते हो, स्किप लास्ट. बट इवेंचुअली ये सब सर पाइप के अंदर ही जाएंगे ना, जितने भी सारे, हाँ, ऑपरेटर मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स जो है ना वो पाइप के अंदर ही जाएंगे सारे. ओके, बट जो क्रिएशनल होता है ना, जैसे ये ऑफ, ये पाइप के अंदर नहीं जाएगा बिकॉज ये क्रिएट कर रहा है ऑब्जर्वेबल को. यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेबल क्रिएट नहीं कर रहे हैं. तो जो क्रिएशनल वाले होते हैं ना वो डायरेक्टली क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं. जैसे ऑब्जर्वेबल है, ऑफ है, फ्रॉम है, इंटरवल है. ओके, तो ये क्रिएशनल होते हैं. और ये सब ऑपरेटर डिसीजन ट्री जो है ना, इसमें आप डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर सकते हो. डॉक्यूमेंटेशन में वो लोग बताते हैं कौन सा क्रिएशनल है, कौन सा ये है. ओके, तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, इवन आपका फिल्टर जो मैंने बताया था, फिल्टर यहाँ से लिख सकते हो बेस्ड ऑन कस्टम लॉजिक फिल्टर. ओके, if they are at the start of the observable and only first value, use first. Based on given amount, use take. Based on custom logic, take while. Okay, so ऐसे आप ऑपरेटर डिसीजन ट्री यूज करके ऑपरेटर्स चूज कर सकते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ, अभी यहाँ पे देखो, अगर आपके पास ऑब्जर्वेबल है ही नहीं, ओके, ये आई हैव नो ऑब्जर्वेबल्स येट एंड आई वांट टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जर्वेबल, तो दिस इज द क्रिएशनल ऑपरेटर. ओके, इस पे क्लिक करो. कस्टम लॉजिक से क्रिएट करना है तो ऑब्जर्वेबल यूज करो, जैसे अभी हम लोगों ने किया था. यूजिंग स्टेट मशीन सिमिलर टू फॉर लूप, जनरेट, वो जनरेट यूज करते, थ्रोज एन एरर, थ्रो एरर. ओके, that just completes without emitting values, empty. Okay, never emits anything, never. That iterates over the values in an array, from, over values in numeric range, range, over predefined values are given as arguments of, जो हम लोगों ने यूज किया. Okay, so that's how you can choose कि which operator I can use. एंड कॉम्बिनेशन के लिए भी है, अगर आपको मल्टीपल ऑब्जर्वेबल से आपको कंबाइन करने हैं तो यू कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑपरेटर. ओके, अंडरस्टूड दिस ऑपरेटर्स थिंग?
सर ये इंपोर्ट में जाओ ना सर, इसके अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के। हाँ, प्रोडक्ट सर्विस। हाँ, अभी सिलेक्शन निकालो जरा, बिकॉज मैंने जब यूज किया ना तो मुझे दो अलग अलग कलर में दिख रहा है, एक डार्क दिख रहा है, एक लाइट दिख रहा है, तो उसका हाँ, मतलब क्या है? क्योंकि डार्क आपने, अगर मैंने फिल्टर को मैंने कमेंट कर दिया यूज में नहीं है, हम्म तो ऐसे लाइट इसमें आएगा डार्क में। सो वो बोलेगा फिल्टर इज डिक्लेयर बट इज वैल्यू इज नेवर रेड, हम्म मतलब वो यूज ही नहीं किया आपने कहीं पे। तो अगर वो यूज नहीं किया तो दैट मीन्स वो आपका डार्क कलर में दिखेगा। ठीक है, सो उसको रिमूव कर दो, अननेसेसरी इंपोर्ट्स मत करो। मैंने इसको अनकमेंट कर दिया तो यूज में, तो आपको लाइट कलर में आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट रिलेटेड टू ऑब्जर्वेबल्स, ऑपरेटर्स एंड सब्सक्रिप्शंस। ओके, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में विल अगेन गो थ्रू सम new things in observables, like how to unsubscribe it, how to use multiple observables, how to multicast your observable. Okay, we'll see a lot of these things. ठीक है, एंड फिर हम लोग लास्ट में हम लोग हमारा जो इनिशियल एक्चुअली जो हम लोग को करना था लॉजिक, वो हम लोग इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, ओके सर। ठीक है। सो स्टॉप हियर, मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, कल शायद नहीं होगा क्योंकि कल मैं शाम को नहीं हूँ, बट विसर्जन, हाँ नेक्स्ट विसर्जन है कल। कल, हाँ कल विसर्जन विसर्जन है, है ना? हाँ विसर्जन है। हाँ, तो मैं नेक्स्ट वीक एंटायर वीक अवेलेबल हूँ, तो हम लोग जो ट्यूसडे को नहीं लेते हैं तो वो टाइम को भी ले लेंगे लेक्चर। ओके सर। ओके, थैंक चलेगा यू सर, देन। बाय। बाय ओके, बाय द वे, थैंक यू। यहाँ वेलकम। क्या बोल रहे थे सर? नहीं, मैं पूछ रहा था किसी को कोई डाउट या क्वेश्चंस वगैरह।